خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، خبردار، اپنے راستے کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں میں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ لیکن جب تو روزہ رکھے تو سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اپنے کپڑوں کو نہیں، اپنے دلوں کو چاک کرو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، یقیناً آپ کے ساتھ بھی صبح سے مجھے اپنے واٹس ایپ پہ مبارکبادیاں، مبارک ہمارا پہلا روزہ، روزوں کے ایام کا پہلا دن آپ کے لیے مبارک، اور یقیناً آپ نے بھی اسی طرح کی مبارک وشز میں آپ نے حاصل کی ہیں، اور یہ یقیناً ہم سب مسیح قوم کے لیے روزوں کے دن مبارک دن ہے۔ پوری کلیسیا میں، عالمگیر کلیسیا میں دیکھا جاتا ہے کہ راک کے بت پہ جتنے لوگ چرچ میں آتے ہیں، اس بات کی گواہی ہے کہ لوگوں کے لیے روزوں کے ایام بہت بہت عزیز اور قیمتی دن ہے۔ لیکن ہمیں یہ سوال پوچھنا ہے کہ ان روزوں کے ایام میں مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا کس نظریے سے مجھے یہ روزوں کے دن شروع کرنے ہیں، اور کیا کچھ ان 40 دنوں کے دوران مجھے حاصل کرنا ہے؟ ایک آدمی بڑی تیزی سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا کہ سڑک پہ اس نے دیکھا نہیں کہ مین ہول کھلا ہوا تھا، گٹر کا ڈھکنا نہیں تھا، اور تیزی میں کنٹرول نہ رکھتے ہوئے اس کا سامنے والا ٹائر گٹر میں گر کے وہ بہت بری طرح سے گرا، سر پہ بھی چوٹ لگ گئی۔ لوگ سارے جمع ہوئے، لیکن یہ بندہ اٹھ گیا، اور لوگوں نے کہا، بھائی تم ٹھیک ہو؟ ہاں مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے جلدی سے گاڑی اٹھا کر وہ گھر پہنچا۔ جب اس کی بیوی نے اس کا حال دیکھا، کیونکہ کپڑے سارے پھٹ گئے تھے،
उसने कहा क्या हुआ, लगता आपका एक्सीडेंट हुआ, चले अस्पताल। उसने कहा मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसने इसरार करने की कोशिश की कि चलो अस्पताल, थोड़ा सा एक चेकअप तो करें। उसने कहा मैं बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। 2 दिन बाद ये आदमी इंतकाल कर गया क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी। मेरे अजीजों, हम अक्सर दफा इस शख्स की तरह है, जब हम खुदा के साथ हम सामना करते हैं, हम खुदा को कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं जरूरत है। खुदावन कहता है तुम्हें तौबा करने की जरूरत है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत है। और अक्सर दफा हमारा रवैया खुदा के सामने यही है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, रोजों के ये याम ऐसे दिन हैं जहां पर हमें इकरार करना है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मुझे यस्सु की जरूरत है, मुझे अपने खुदावन की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने अंदर दिल में अपने आप को भारी महसूस करता हूं। मैं अपने दिल में अपने आप को खाली महसूस कर रहा हूं, जैसे कोई खुशी, कोई जिंदगी नहीं है। मेरे अजीजों, रोजों के याम इसी वजह से दिए गए हैं ताकि हम जिंदगी, बल्कि कसरत से जिंदगी हासिल करें। और किस तरह? सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, तौबा। यूनानी लफ्ज तौबा मेटानोया है, और मेटानोया का मतलब मुख्तलिफ मिसालें हैं, लेकिन एक खूबसूरत मिसाल जो अक्सर दफा मैं पेश कर रहा हूं कि मेटानोया का मतलब, अगर आप इस सिमत में चल रहे हैं तो जब आप पे मेटानोया आ जाता है या जब आप तौबा करते हैं तो आप 180 डिग्री टर्न करके आप इस तरफ चलते हैं। यानी कि अगर बंदा पहले गुनाह के रास्ते में है, जब वो तौबा करता है तो वो बिल्कुल टर्न करके दूसरी सिमत में जाता है यस्सु के साथ। और इन रोजों के याम में हमें यही करना है। और क्या जिंदगी हासिल करने के लिए यस्सु क्या कहता है? जस्ट से सॉरी, मैंने गुनाह किया है। कितने हमारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं, अगर हमें जुर्रत हासिल हो कहने के लिए मैंने गलती की, मुझे तौबा करनी है। और खुदा के साथ भी अगर हम अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, यस्सु सिर्फ एक चीज मांगता है, तौबा करो, तौबा करो। और यस्सु माफ करने के लिए तैयार। लेकिन इन रोजों के याम में हमें दावत दी जाती है कि हम अपनी रूहानियत में, अपनी मसीहत में बढ़े। यस्सु के वक्त में अगर कोई इंसान खुदा का शागिर्द बनना चाहता था, अगर खुदा के साथ वो अपनी रूहानियत में कामलियत तक पहुंचना चाहता था, अपनी जिंदगी में खुदा के साथ मजबूत रिश्ता रखना चाहता था, तो 3 चीजें करने की जरूरत। और ये 3 चीजें कहां से? याद है वो नौजवान यीशु के पास आकर कहा, हमेशा, ए खुदावंद, मैं हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता हूं, मुझे क्या करना है? और यीशु ने उसे कहा, तू खुदावंद को अपने पूरे दिल, अपने पूरे जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से प्यार कर, खुदा से ईमान में मजबूत रहे। पहले नंबर पर दुआ। इन रोजों के दिनों में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हमारी कलीसिया में दुआ पे बड़ा जोर दिया जाता है। आने वाले जुम्मे 14 मुकाम और लोग बड़ी तादाद में आते हैं। अक्सर दफा रोजों के दौरान, और मुझे पता यहां पे भी हर सुबह की नमाज में लोग बड़ी तादाद में अलहदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो अलहदगी में देखता है तुझे
दुआओं पर जोर देना है, जमायती दुआ और इनफरादी दुआ। लेकिन मैं एक और बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं दुआ के नाते से, क्योंकि ये मेरी जिंदगी में बहुत तब्दीली लाई है। खुदा के साथ मेरा रिश्ता बड़ा मजबूत हुआ और वो है मसीही किताब पढ़ना। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल राइटर्स यहां पर है जिन्होंने रूहानियत में बहुत आला दर्जे पर किया है, और हमारी सेक्युलर टाइम टेबल में हमें सिखाया गया कि आपने स्पिरिचुअल रीडिंग करनी है, एक ऐसी किताब जिसके जरिए से आप रूहानियत में बढ़ सकते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैंने एक किताब के जरिए से मेरी सारी सोच तब्दील हुई है, और मैं आपको भी दावत देता हूं कि हमारी मसीह तर्ज से जिंदगी में न सिर्फ दुआ पर इज्तिमाई और इनफरादी बल्कि तालीम के नाते से, पढ़ने के नाते से अपनी सोच खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें। दूसरा, खैरात के काम, अपने हमसाये से मोहब्बत। मुकद्दस विंसेंट डी पॉल यहां पर हमें उसकी बातों पर गौर करना, क्योंकि मुकद्दस विंसेंट डी पॉल गरीबों से बेपनाह मोहब्बत रखता था। वो कहता था कि अगर तुम खुदा से मिलना चाहते हो, गरीबों के पास जाओ, उनकी मदद करो, तो खुदा की मौजूदगी तुम महसूस करोगे। और एक वक्त में उसने ये भी कहा, जन्नत पहुंचना चाहते हो, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, उसी से तुम जन्नत में पहुंचोगे। मेरे अजीजों, इन रोजों के अयाम में हमें दावत दी जाती है कि हम रहम के काम करें, और अक्सर दफा आप में से बहुत से इन्हीं कामों पर जोर देते हैं। आए आज याद रखें कि रोजा सिर्फ इनफरादी नहीं, मुझे अपने हमसाये का भी ख्याल करना है, और मेरी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इन रोजों के याम में मैं किसी ना किसी हमसाये से, मजबूर इंसान, गरीब इंसान, उसकी जरूर मदद कर सके। और तीसरे नंबर पर रोजा रखना। यहां पर हमारे मसीही बहुत बहुत सवाल पूछना शुरू करते हैं। रोजा किस तरह का रोजा, 12 घंटे का रोजा, 24 घंटे का रोजा। और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये सवाल हमारे मसीही 40 दिनों के दौरान बस पूछते रहेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद ज्यादा या कम खाने पे जोर नहीं देता है। जो रोजा खुदावंद रखना चाहता है, दिल की तब्दीली। क्योंकि चाहे हम कम खाना खाएं, ज्यादा खाना खाएं, खुदा पे कोई असर नहीं होता है, असर होता है मुझ पर। अगर कलीसिया की कवानीन को देखें तो कलीसिया के कवानीन बड़े रिलैक्स है। कैनन लॉ, जो कलीसिया के कानून है, वो बहुत रिलैक्स है। वो कहती है कि रोजा कौन रखेगा? बच्चे यानी 18 साल से नीचे, उनको माँ बाप की इजाजत से रखना है, और 60 इयर्स के बाद रोजा रखने की पाबंदी नहीं है। यानी वो जो 18 साल से लेके 60 इयर्स तक, 60 साल तक, उन पर पाबंदी है कि वो रोजा रखे। फिर कलीसिया कहती कितने रोजे? 40 तो है, लेकिन 2 लाजमी रोजा पाबंद है सब मसीहों पर जो उस एज ब्रैकेट पे आते हैं। कौन से? आज का रोजा और पाक जुम्मा। बाकी कलीसिया सख्ती नहीं करती है। वो कहती है अगर आप अपने तौफीक से, अपने काम के नाते से, आपके पास ताकत है कि आप ये रोजा 40 दिन का रख सकते हैं, रखें। लेकिन खाने की मिकदार पर गौर ना करो, दिल की तब्दीली पर गौर करो। क्योंकि अगर
روزہ رکھ کے میں آپ کو بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ کیا بات ہے، میں نے 40 دن روزے رکھے، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر روزہ رکھ کے میں شیطان کی آزمائشوں کو، جس طرح میں نے کھانے کی آزمائش کو دور کی، میں شیطان کی بھی آزمائشوں کو دور کروں، تو تب روزہ رکھنے کا فائدہ۔ آنے والے جمعے اگر آپ آئیں گے تو تلاوت روزہ کے اوپر ہے کہ روزہ، صحیح روزہ کیا ہے، اور عیسیٰ نبی صاف کہے گا کہ تم روزہ رکھتے ہو اور باہر جا کے بیوہ کا پیسہ لوٹ لیتے ہو، غریبوں کے ساتھ ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، کیا اس طرح کا روزہ خدا کو پسند ہے؟ میرے عزیزو، روزہ دل کی تبدیلی کی طرف آئے تو یقیناً کلیسیا تاکید کرتی ہے روزہ رکھیں، لیکن آئے ہم مقدار، کھانے کی مقدار پر غور نہ کریں، بلکہ دل کی تبدیلی کی طرف جائیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، یوئیل نبی، اپنے کپڑوں کو چاک نہ کرو، اپنے دلوں کو چاک کرو۔ آئے آج انہی 3 باتوں سے، دعا کے ذریعے سے، خیرات کے کاموں کے ذریعے سے اور روزہ رکھ کے، ہم حقیقتاً طور پر اپنے دلوں کو چاک کریں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔